Friends, welcome back. And till now, we have seen how to use the resources which are available under open access and how to search the open access archives, right? And the sources which are uploaded by other people that we have seen. Now, the very important part is how to uh, increase the visibility of our publications. देखिए गूगल इंडेक्स्ड ओए रिपोजिटरी में अगर आपने आपका पेपर अपलोड किया तो नेचुरली द वर्ल्ड वाइड that paper will be read. So if your research is quality research, then the people will use your findings. They will cite you in their papers, and naturally your citation index, your H index will get increased, as well as one more thing is that uh, the impact factor of the journal will be more. Okay, now we will go ahead with how to increase the citations to our work. Okay, the process is known as archiving. It may be self archiving, it may be archiving through institution or self archiving, right? While going for self archiving, कि आपका मोटो क्या है? To increase the visibility of your research so that your paper will be read worldwide, it will get more readers and naturally more citations. Then how to archive? The very first thing is open your blog, put your paper under open access. Okay. Now, second one is if your institution having its institutional repository. देखिए इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि सपोज आई एम वर्किंग इन अ कॉलेज, ओके, तो कॉलेज है, वो कॉलेज के जो टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स है, फोटो गैलरीज है, देन फैकल्टी के रिसर्च पेपर्स है, फैकल्टी के थीसिस है, बच्चों के डिसर्टेशंस है, ऑल दीज इन हाउस information sources you should upload in the institutional repository so that it can be accessible online throughout the world, right? Then the third one is disciplinary archives. See, there are ready-made disciplinary archives are there which are maintained by renowned worldwide organizations, okay, and you can put your published paper in disciplinary archive. And for example, ARXIV is science related archive, okay. If you are science based, then you can publish your papers to ARXIV. ELIS is for library and information science, and there are certain general open access repositories also like Figshare, OSF. There are some academic social networking sites also like ResearchGate, then academia.edu. Now we will see one by one. See, this is general repository, that is Figshare, and what it says: store, share, discover. See, this is depository. It is not granted as a publication, right? Your published paper you are depositing in open access repository because suppose you publish your paper with a renowned publisher. Okay, so your paper will be read by the subscribers of that particular journal, but not the general people. But if you deposit that published paper under open access repository, then you will get more readers. Okay, that is actually the concept of repositories. See, for this fixture, I have given the keyword self archiving, and it has retrieved me so many papers related to self archiving. Okay, so these are actually deposited by others, but if suppose I want to put my paper in this repository, then login option is there. Here you have to register. Okay, for reading others papers, you need not get that registration process.
But suppose if you want to upload your paper in web media, then you should register with that particular repository, which is free of cost. Then there is one more general repository, that is OSF Home. Okay. See, it is free open platform to support your research and enable collaboration. Then there are some social networking sites like academic. Okay. That is ResearchGate. ResearchGate का नाम आपने सुना होगा, and it is joined for free. Okay. People voluntarily deposit their papers into such social networking sites. Then there is one more, academia. See, suppose if you put your published paper under this academia, then these many academicians and researchers will get access to your paper. Okay, so this is actually the self archiving. See, self archiving is the act of depositing a free copy of electronic document on the internet, or more specifically on www, in order to provide open access to it. Okay. See, the term usually refers to the self archiving of peer reviewed journal research papers and conference articles, as well as thesis, book chapter, uh, which can be deposited. It actually maximizes accessibility, usability, and citation impact. Right. Now, when to archive? देखिए, आप जब भी एक पेपर लिखते हो तो वो तीन अवस्था से गुजरता है. The first one is preprint, that is your manuscript. That manuscript, when you submit to editorial board, the editorial board will identify the expert persons in that micro theme, and then they will send your paper to the reviewers. ये जो peer review होता है, वो एक होता है blind peer review, दूसरा होता है डबल ब्लाइंड peer review. ब्लाइंड peer review में ऑथर का आइडेंटिटी जो है वो रेफरेंस को नहीं बताया जाता, ओनली द सब्जेक्ट कंटेंट इज सेंड टू देम. दूसरा होता है डबल ब्लाइंड peer review. इसमें ऑथर का आइडेंटिटी तो हाइड किया जाता ही है, उसके साथ में दो रेफरी को भी आपस में पता नहीं रहता कि उनके पास में सेम पेपर आया. राइट. सो रेफरी विल कमेंट एंड आस्क यू टू मॉडिफाई द पेपर. एडिटोरियल बोर्ड आपके पास वापस सजेशंस भेजेंगे. You will modify the paper. Again, it will go to referee. Referee says now it is okay. Then the paper is accepted for publication, and this accepted paper is known as postprint. Okay. अभी एडिटोरियल बोर्ड का काम शुरू होता है पोस्ट प्रिंट पे, और उसको कैमरा रेडी कॉपी बनाते हैं, रेडी फॉर पब्लिकेशन. लाइक उनके सेटिंग्स में वो उसको ढाल देते हैं. देन उसमें इशू नंबर, पेज नंबर्स, ये सब चीजें आ जाती है हेडर फुटर्स में, और उसका कैमरा रेडी वर्जन कॉपी होता है. दैट इज नोन एज रीप्रिंट और पब्लिशर्स पीडीएफ वर्जन. सो आप प्रीप्रिंट स्टेज में भी आर्काइव कर सकते हो, पोस्ट प्रिंट स्टेज में भी आर्काइव कर सकते हो, and you can also upload publishers PDF version. Okay. Now, जो आपका प्रीप्रिंट होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, पोस्ट प्रिंट भी बताया, पब्लिशर्स वर्जन भी बताया. अभी देखिए, ये ओपन एक्सेस के बीइंग अ रिसर्चर हमारे लिए दो रोड होते हैं. कौन सा चुनना वो हमारे ऊपर रहता है. अभी देखिए, आप सब पीएचडी के लिए एनरोल्ड हो, आपको एक या दो पेपर आपके डायरेक्शन के हिसाब से आपको पब्लिश करने हैं बेस्ड ऑन योर थीसिस. ओके. तो आपके लिए गोल्ड रूट होता है. गोल्ड रूट में यू गो टू डीओएजे, और आप देखिए कि जो ओपन एक्सेस जर्नल है उन्हीं को आपका पेपर भेज दीजिए. तो नेचुरली वो जर्नल ही ओपन एक्सेस है, तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली ओपन एक्सेस में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. सो दिस इज एक्चुअली द गोल्ड रोड. ठीक है. नाउ ग्रीन रोड. ग्रीन रोड का मतलब ये होता है कि हाँ, आप एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल ढूंढो जो स्कोपस में इंडेक्स्ड है, एल्सवेयर का है, इमेरल्ड का है. यू send your paper to this journal which is not open access. After getting it published, आप उस पेपर को डिपॉजिट कर दो ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज में. तो
जो एल्सवेयर इमेराल्ड के जो सब्सक्राइबर्स है उनके तक तो आपका पेपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप उसको आर्काइव करते हो ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स में, तो आपको वहां पे एक चीज मिलेगी कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड में वो पेपर को विजिबिलिटी मिलेगी, यानी दोनों आप बेनिफिट्स ग्रीन रोड में ले सकते हो। द जॉय टू पब्लिश विथ reputed publishers under non-open access, and after publishing getting it putting it or depositing it in open access repositories। अभी देखिए सबसे मजे की बात होती है कि ये हम क्यों करना चाहिए बीइंग रिसर्चर, क्योंकि ये ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज जो है दीज आर इंडेक्स्ड बाय गूगल। जैसे ही आप आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेपर इसमें डाल देते हो वो गूगल में आ जाता है, गूगल में आ जाता है तो वो वर्ल्ड वाइड चला जाता है। ओके, so you are maximizing the visibility। okay, now कुछ कुछ जर्नल्स जो है वो ग्रीन ओपन एक्सेस को मना करते हैं। ओके, तो वो कौन से जर्नल्स मना करते हैं हम देखेंगे, उनकी कॉपीराइट पॉलिसी क्या है। लेकिन कुछ जर्नल्स जो होते हैं दे मे फॉलो एम्बार्गो पीरियड, मीन्स वो कंडीशन डाल देते हैं कि 6 मंथ्स तक आप ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स में मत डालिए, लेकिन 6 मंथ्स के बाद में आप डाल सकते हो, दैट इज नोन एज एम्बार्गो पीरियड। ओके, अभी गोल्ड ओपन एक्सेस रूट का मतलब ये होता है कि वो जर्नल ही ओपन एक्सेस है। ठीक है, सो यहाँ पे एम्बार्गो पीरियड नहीं होता, क्योंकि वो जर्नल जैसे पब्लिश होता था इश्यू वो ओपन एक्सेस में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ये कुछ जर्नल्स ऑथर फंडेड मॉडल पे चलते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन फंडेड मॉडल पे चलते हैं। मतलब दे मे चार्ज यू द आर्टिकल प्रोसेसिंग फी। ये गोल्ड रूट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी देखिए अगर आप देखेंगे स्कोपस, तो स्कोपस में आप देखेंगे कि 25,100 जर्नल टाइटल्स इंडेक्स्ड है, उसमें से 23,452 पीयर रिव्यूड जर्नल्स है, और ये 23,452 में 5,500 फुल्ली ओपन एक्सेस जर्नल्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी क्वालिटी कम होगी, तो ओपन एक्सेस जर्नल्स आर आल्सो इक्वली क्वालिटेटिव, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे कि वेब ऑफ साइंसेस भी जो है उसमें हाई इम्पैक्ट पीयर रिव्यूड जर्नल्स को क्या किया जाता है, इंडेक्स किया जाता है, तो उसमें भी मोर देन 1,200 ओपन एक्सेस जर्नल्स है विच आर फॉलोइंग द गोल्ड रूट। ओके, अभी देखिए स्टीवन हार्डन एंड टीम ब्रॉडी ने एक हमको लाइफ साइकिल दिया आपके पेपर का, कि आपका पेपर कौन से स्टेजेस से जाता है और सेल्फ आर्काइविंग उसको कैसे कैसे मैक्सिमाइज करता है। अभी देखिए ये लिमिटेड एक्सेस वाला पेपर है। ओके, लिमिटेड एक्सेस वाला पेपर मीन्स है ये रिसर्च हो गया। ठीक है, रिसर्चर ने प्रीप्रिंट निकाल दी, निकालने के बाद में वो जर्नल को पब्लिश कर दिया, वो प्रीप्रिंट गया पीयर रिव्यू एक्सपर्ट के पास में। ठीक है, पीयर रिव्यू एक्सपर्ट ने एक्सेप्ट किया, वो पोस्ट प्रिंट बन गया। ये पोस्ट प्रिंट, ये प्री प्रिंट था, ये पोस्ट प्रिंट बन गया। ओके, अभी देखिए अभी रिसर्चर ने जो है एडिटोरियल बोर्ड ने उसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश जैसे कर दिया, ओके, पब्लिश कर देने के बाद में उस जर्नल के जितने यूजर्स है, ओके, उन्हीं के पास में ये आपका पेपर चला गया, यानी इतने ही लोग, ये आपका पोस्ट प्रिंट प्री प्रिंट कहीं पर नहीं जा रहा है, सिर्फ वो जर्नल में जा रहा है और कोई रिपोजिटरी में नहीं जा रहा है। तो इतने लिमिटेड यूजर्स ही आपके पेपर को पढ़ रहे हैं। विल गो अहेड। अभी हमने क्या किया, हमारा रिसर्च हो गया, हमने प्री प्रिंट बनाया, वो प्री प्रिंट भी मैंने ओपन एक्सेस रिपोजिटरी में डाल दिया। अभी देखिए जैसे प्री प्रिंट मैंने ओपन एक्सेस रिपोजिटरी में डाल दिया तो लोगों ने पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए, है ना, लोगों से, लोग देते हैं सजेशंस, राइट। मैंने ये प्री प्रिंट जर्नल को दे दिया, वो रिव्यूअर के पास में गया। ओके, अभी मैंने क्या किया कि वो पोस्ट प्रिंट बनाया उनके पूरे इसको
ये करते हुए, और मैंने पोस्ट प्रिंट को भी सेल्फ आर्काइव में डाल दिया, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी इतने लोगों ने पढ़ा मेरा पोस्ट प्रिंट, प्री प्रिंट भी पढ़ा मेरा, देखिए ये मेरा प्री प्रिंट पढ़ा, फिर पोस्ट प्रिंट पढ़ा, ठीक है। अभी पोस्ट प्रिंट पढ़ने के बाद में ये आ गया, रीप्रिंट आ गया, तो रीप्रिंट भी और लोगों ने पढ़ा। तो देखिए इतना इतना और इतना मेरे रीडर्स बढ़ गए सेल्फ आर्काइविंग एक्टिविटीज के कारण। ओके, अभी स्टीवन हर्नाट जो है, उन्होंने एक जीनोस पैरालिसिस करके 19 मोस्ट कॉमन कॉजेस कहे। एक्चुअली उन्होंने शब्द यूज किया पैरालिसिस। क्या है, सबसे पहली चीज है लोग डरते हैं अपना पेपर देने के लिए। जैसे लाइब्रेरीन अगर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाता है प्रोजेक्ट लेके, तो फैकल्टी खुद पेपर देने के लिए डरते हैं। उनको लगता है कि हमारा पेपर अगर ओपन एक्सेस में आ जाएगा तो लोग ऑब्जेक्शंस लेंगे, कोई प्लेजरिज्म के चार्जेस आएंगे। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ देयर रिसर्च, वो एक दिमाग में रहता है, और दूसरा दिमाग में रहता है कि इट्स इलीगल, क्योंकि मैंने कॉपीराइट साइन किया है, हाँ, पब्लिशर ने मेरे से कॉपीराइट एग्रीमेंट लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो कॉपीराइट एग्रीमेंट में क्या लिखा है वो आपने पढ़ा है क्या? स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक कोई नहीं पढ़ता, राइट। दूसरी चीज पीयर रिव्यू का होता है ना। हमें लगता है कि ये पीयर रिव्यूड नहीं है तो मैं कैसे ये करूं। देखिए पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स जो होते हैं, इट इज ऑलरेडी पीयर रिव्यूड। सेल्फ आर्काइविंग से वो पीयर रिव्यूड जर्नल के आर्टिकल्स को लेके डिपॉजिट करता है ओपन एक्सेस रिपोजिटरी में। दूसरा चीज होता है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज में हमें लगता है कि इट लैक्स द प्रेस्टीज ऑफ पब्लिकेशन। नो डाउट आपने प्रेस्टीज ऑफ पब्लिकेशन ऑलरेडी ले लिया है ना, आप पब्लिश्ड पेपर ही ओपन एक्सेस रिपोजिटरी में देते हो, इसका मोटो अलग है। ओके, तो इस प्रकार से कुछ फियर जो है, जैसे किसी को लगता है कि मेरे पेपर का प्लेजरिज्म हो जाएगा, या फिर कोई मेरे काम में प्लेजरिज्म ढूंढेगा, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे दिमाग में होते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस आर्काइविंग पर्पस, राइट। अभी देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है, विल द पब्लिशर कैच होल्ड मी फॉर वायलेटिंग कॉपीराइट। ये सबसे बड़ा भय होता है जिससे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज फ्लरिश नहीं होती। लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन है, दैट इज शेरपा। शेरपा इनिशिएटिव इज प्रोवाइडिंग यू 4 सर्विसेज, दैट इज शेरपा रोमियो, शेरपा जूलियट, शेरपा ओपन डीओएआर एंड शेरपा सर्च। ये सर्विसेज शेरपा देती है। अभी शेरपा रोमियो क्या है? शेरपा रोमियो is the solution for this fear. Okay, Sherpa Romeo is the database prepared based on publishers' copyright policies and self-archiving policies. ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका पेपर जिस जर्नल में आया है उस जर्नल का टाइटल या ISSN यहाँ पे डालना है, तो वो आपको आपके पब्लिशर की पॉलिसी बता है, वेदर योर पब्लिशर allows you to self archive your paper or refuses। ठीक है, तो शेरपा रोमियो, what Sherpa Romeo has done? Sherpa Romeo has studied copyright and archiving policies of the publishers as well as journals, and they have categorized the publishers into 4 categories: green, blue, yellow and white। देखिए मैंने आपको कहा है कि आपका पेपर 3 अवस्था से गुजरता है, प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट एंड रीप्रिंट। ओके, पब्लिशर्स वर्जन। तो what green category people publisher says, you can archive your paper in preprint, postprint or PDF. We don't have any objection. That means green publishers are allowing self-archiving. What blue publisher says, you can archive postprint, that is the final draft after referring, or PDF version. Okay, so blue publisher is also supporting self-archiving. Yellow publisher says you can only archive preprint, that is pre-referring, जहां से हमारा काम शुरू होता है, you don't archive, means
it is condition over here. Why it says नो आर्काइविंग प्लीज. अगर आपको हमारे साथ में काम करना है, हमारे जर्नल में पब्लिश करना है, तो वी विल नॉट परमिट यू टू आर्काइव. सो ग्रीन एंड ब्लू are permitting you, okay, yellow permitting you only preprint, white says no. Now we will see, I have given the name nature, okay, nature London, okay. So this is the information I retrieved from Sherpa Romeo, that is author can archive preprint and postprint bhi author can archive, but after 6 months, that is embargo period. So follow this direction and go for archiving your papers, okay. And author cannot archive publishers PDF. ठीक है, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन हम 6 महीने के बाद में पोस्ट प्रिंट भी करेंगे ना, तो उसके जो रीडर्स है वो बढ़ेंगे. See, it is showing it is a Romeo yellow publisher. Now see, these are various publishers. See, all reputed publishers are included under this particular database, and their category is given in Sherpa Romeo database. And each publisher's journal list is also provided. अभी देखिए Springer Verlag, it is from Germany. It is green publisher. It is green publisher. Post print तक वो allow करता है, right? Then actually this is the growth of publishers in Sherpa Romeo database. You can see over here. Okay. Now these are the colors. See, maximum publishers, they are from green category, that is 42, and blue category 33. 42 and 33, that means 75% publishers of the world, they allow self-archiving. Yellow are 7%, white are 18%, right? And you can see Sherpa Romeo publishers by country. So here I have selected India, okay? India as the country. तो इंडिया से 124 पब्लिशर्स जो है इंडेक्स्ड है शेरपा रोमियो डेटाबेस में. उसमें से ग्रीन 55 है, ब्लू 58 है, ओनली 2 आर येलो एंड व्हाइट आर 9. ओके, तो सिर्फ ये व्हाइट को आपको देखना है. अगर आपका पेपर व्हाइट कैटेगरी के पब्लिशर ने पब्लिश किया है तो उसको आर्काइव मत कीजिए, लेकिन बाकी पेपर्स यू कैन आर्काइव. See, this is the list of 122 publishers from India. You can see over here. Then these are the 9 publishers from India. That is Biolim publisher. Then Tirthankar Mahavir University, Kamala Raj Enterprise. So they are not allowing self-archiving, right? Abhi dekhiye, these two are yellow publishers. You can see from India, and this is the consolidated list of 124 publishers from India. This is list continued. आप यहाँ पे देख सकते हो. And you can see here, one is there, Indian Pharmaceutical Association is there, and it is blue publisher. तो इस प्रकार से आप पब्लिशर्स की पॉलिसीज जो कर सकते. Indian Academy of Sciences, it is green publisher. Then you can see Sherpa is also giving you some funders and authors compliance tools access. Sherpa is giving you one more service, that is Sherpa Juliet service. Under this, they have studied the research funders open access policies. They have prepared some data under this Sherpa Juliet database, and these are the funders by country. Then some publishers from India and their publishing policies are reported. Sherpa is also providing you one single window access to open access repositories, that is directory of open access repositories. And you can see 5352 repositories are reported worldwide in this particular open DOAR. See, this is the official Sherpa means it is the name of the project. Okay. And under that project, they have created all these databases. Okay. See, OpenDOR is giving you the access to more than 5,000 repositories worldwide. And here advanced search option is given. And you can see
See here you can search by country also, and here if I search for India, then you will get 94 repositories from India. These are indexed in DOAR, right? And you can see worldwide. See here is India 94. Okay. Now then you can see in DOAR there are 4730 registered institutional repositories worldwide, and 351 are disciplinary, and these 350 are very useful for all of us to deposit our articles, that is disciplinary repositories. Now you can see what you can upload. You can upload journal articles, dissertations, books, chapters or sections, then workshop papers, then reports, then patents, bibliographies, then learning objects also, data sets also. So anything you can upload in these repositories, right? Now, this is the content wise, that is, you can see subject wise they have given status. And then these are Indian repositories, 94. You can see this is one of the repository from India, that is Aries Digital Repository. This is the information given. You can see it is Architecture to South Asia Repository. And when you go to advanced search option, okay, under this click on advanced search option, you will get these parameters, and here just click on disciplinary archive. So out of all these 351 are disciplinary, those will be retrieved. See, these are all disciplinary archives. See, that too for physics and astronomy. I have given the advanced search disciplinary and subject physics and astronomy. So these are the repositories where these people can upload their papers. Okay. Now you can see these 17 are there, and under this there is one, that is ARXIV. This is the oldest one. I will show the demonstration of this repository, how to upload your paper in this. Okay. See, this is ARXIV. This is the repository's name. Okay. And when I searched ARXIV for the keyword COVID-19, I retrieved uh, uh, 724 articles from ARXIV on the keyword COVID-19, which are deposited by other researchers. See, this is full text, and this one more is there. So it is the oldest repository in the world. Okay, and it is maintained and operated by Cornell University. Now, what it covers: physics, mathematics, computer science, quantitative biology, quantitative finance, statistics, electrical engineering, and system science and economics. तो ये सब जो researchers है ये domain में, they can go and deposit to ARXIV. It's prestigious open access repository and oldest one. Okay. See, under this, you can go through the web page of ARXIV. So you will get submission guidelines, submission preparation of your article, and directions for author registration is given. Okay. और आपको registration form जो है वो भरना पड़ता है. You fill the form, you write your credentials over here. Like मैंने मंगला हिरवाड़े लिखा और बाकी details दिए. And here the link comes register. So I registered. Now see here my account is created. Okay, ये सब दिया है उन्होंने. अभी start new submission. तो मैंने start new submission पे click करने से मुझे वो steps आते हैं through which I can upload my document in this particular ARXIV. जब आप इसमें upload करेंगे आपका पेपर, तो 2-3 दिन वो बफर में रहता है. 3 दिन के बाद में अगर आप गूगल में चेक करोगे तो वो तुरंत रिट्रीव होगा गूगल के सर्च बॉक्स के थ्रू. ओके. सी स्टार्ट सबमिशन. यहाँ पे सब आपको ये भरना पड़ता है. ऑथरशिप क्या है, लाइसेंस स्टेटमेंट, अगर आपको क्रिएटिव कॉमन्स के लाइसेंस. देखिए ओपन एक्सेस में भी अगर आप कुछ मर्यादाएं डाल सकते हैं, जैसे कमर्शियल यूज के लिए आप प्रोहिबिट कर सकते हो. तो देयर इज
Creative Common Licensing, CC by ND. Okay, these things are available. Then this is ELIS, that is हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है. और 2006 में गुलबर्गा में कैलिबर कॉन्फ्रेंस में मैंने एक पेपर रीड किया था. वो मैंने ये पेपर इसमें आके अपलोड किया था. दैट वाज माय फर्स्ट पेपर अपलोडेड ओवर हियर, that is open access status quo India. And I received opportunity to write for UNESCO by depositing that particular paper under this. क्योंकि उन्होंने वो पेपर ढूंढा, उनको ओपन एक्सेस पे लिखने वाले लोग चाहिए थे. उन्होंने गूगल किया, गूगल में मेरा वो पेपर पहले नंबर पे आता था ओपन एक्सेस इंडिया डालने से. तो उन्होंने मुझे ईमेल किया और उन्होंने मुझे इंडिया का केस स्टडी मांगा. एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन यूनेस्कोस हैंडबुक in German language, then English language, and then in Chinese language. So इस प्रकार से आपको ample of opportunities मिलती है when you make your presence on internet, and not in Facebook or Insta, but to these academic platforms, right? So these many papers have been archived by me. And whenever you go to Google Scholar, see, I am cross checking this. See, this was the paper published with elsewhere. इसके बाद में ये पेपर था जो गुलबर्गा कॉन्फ्रेंस का था, राइट? सो ये सब पेपर्स गूगल स्कॉलर में इंडेक्स हो रहे हैं मेरे ऑटोमेटिकली वहां पे डालने से. और देखिए यहाँ पे यू कैन सी my citation service of Google will be giving you citations also to your paper. Click on this, so you will see कि कहाँ कहाँ आपका पेपर साइट हुआ है. और मेरा H इंडेक्स 7 और बन गया है, और I10 इंडेक्स मेरा 6 बन गया है. So these type of statistics also you can get from this. So the message over here is, आपको क्या करना है, आपको खुद का प्रेजेंस बनाना है बाय पुटिंग. दोनों आप चीजें लो, जैसे ग्रीन रूट फॉलो करो, गो टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल, देन आर्काइव, और गोल्ड रूट फॉलो करो, जो जर्नल्स ओपन एक्सेस है उन्हीं में आप पब्लिश करो. तो आपको बहुत सारी चीजें होती, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओपन एक्सेस में अगर आप देते हो, एंड सपोज इफ यू वांट टू reserve some rights, so Creative Common licensing system is available. See, if you are taking this license Creative by CC by, then you are giving the permission to others to read, download, print, share, distribute, reuse, build on, revic, and then tweak, remix, and translate, and reuse commercially. If you are using CC by NC license, then it prohibits others to reuse commercially. And if you are using CC by NC ND license, then it is prohibiting others tweak, remix, translate, and reuse commercially the your work. Okay. So friends, this is actually the journey from reprint to e-print, right? And these are actually the benefits of open access repositories, open access uh, platforms. Okay. So being researchers, you are all young people and so enthusiastic people. You should try all these new avenues and new platforms. I know this generation is technology savvy, and they can easily handle all these things. Okay, so explore the world, be qualitative and be selective, and be aware of all these research metrics, that is H index, I10 index, then other indices, then Scopus, what Web of Science is, all these things you must know, right? So I would like to conclude this session. As rightly said by Alvin Toffler, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write,
but those who cannot learn, unlearn, and relearn. So, friends, I hope that I have made justice with these 3 hours, and I have told you about very useful websites which you can use for your research. I'm thankful to UGC HRDC, RTM Nagpur University. Thank you, Preeti. Thank you all for patiently listening. If you have any query, you can discuss with ma'am. काही प्रश्न Huh? असतील तुम्ही मॅडमला विचारू शकता. Yes. Any question? काही क्वेश्चन नाही I आहेत. will just stop this. भूका लागल्या असतील सगळ्यांना. Hello, ma'am. ठीक आहे मॅडम, थँक्यू सो मच Hello. मॅम. हा हा मॅडम बोला. Hello, ma'am. I wanted to ask one thing. That in references, we mention all those things which we have cited, and in bibliography, we Yes. write all those things which, irrespective of the fact whether we have cited it or not. Is it true, ma'am? What I understand. No, don't repeat. Don't Okay. don't repeat. Okay. Then in Rewriting is not required, madam. Once you have cited under reference section, again you need not No give need all these to- things in bibliography. Okay, so bibliography will contain the things which I have referred, I have consulted, not cited. Yes. Am I right, ma'am? Referred, not referred. Whichever Yes, you have I have referred, just- but you have not cited. Yes, that would be covered in bibliography. Okay, thank you, Yeah. ma'am. That was the only Don't thing. repeat the things. Thanks. Okay. Actually. Okay. Huh. Anup Thakre here. I have one question. As per the literature survey that you have seen, तुम्ही असं म्हणालात की लिटरेचर सर्वे मध्ये I'm not कम्प्लीट getting you, sir. 1.5. Sir, I'm not getting you. तुमचा voice break होतोय. Am I audible? हा. मॅम लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये आपण कम्प्लीट एक 1.5 पेजचा कम्प्लीट एक पॅराग्राफ आपण त्यात पुट करायचं असं तुमचं म्हणणं होतं. तर त्याचा एखादा कुठला फॉर्मॅट तुमच्याकडे आहे का, म्हणजे शेअर करू शकाल का आमच्यासोबत? नाही, एक पॅराग्राफ टाकायचा म्हणजे अच्छा, ते इंट्रोडक्टरी पॅराग्राफ, ट्रान्झिशन पॅराग्राफ असा. अच्छा, नाही मी कसं म्हटलं की जसं थीम आहे है ना, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की स्कूल विजिट्स आहे आणि दुसरं पॅरेंट्स ऍटिट्यूड आहे है ना. समजा हे दोन तुमच्या कॉन्सिक्युटिव्ह थीम्स असतील, राईट. सो यू हॅव टू जस्ट कोरिलेट इन ट्रांजिशन पैराग्राफ के पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होने से स्कूल विजिट्स का क्या फर्क पड़ रहा है, लाइक दैट ओनली. ज्यादा उसमें टेक्निकली जाने की जरूरत है. ऍक्च्युली माझं फार्मास्युटिकल सायन्सेस बॅकग्राऊंड मध्ये आहे मॅडम, पीएचडी. तर मला यामध्ये माझं एक जसं फॉर्म्युलेशन आहे, तर मी फॉर्म्युलेशनचे जे कुठले माझे लिटरेचर्स आहेत ते मी त्यांना 4 टॉपिक्स मध्ये सब डिवाइड केलेत. तर मला जेव्हा लिटरेचर बनवायचा होता तर मी त्यांना 4 लिटरेचर रिव्ह्यूज मध्ये डिवाइड केले की मेजरली आय एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट, आणि त्याला 4 वेगवेगळे लिटरेचर रिव्ह्यूज दिले होते. तर यापूर्वी आम्ही असं करायचो आणि हे मी पहिल्यांदा ऐकतोय म्हणून मी तुम्हाला विचारतो. नाही, ऍक्च्युली डिस्कशन्स जेव्हा असतात की नाही तेव्हा हे कोरिलेशन्स जे असतात दोन थीम्सच्या मधले है ना, ते जर का तुम्ही हायलाइट केलं तर इट बिकम्स व्हेरी इफेक्टिव्ह वन. जसं तुम्ही 4 थीम्स घेतले त्याच्यामधल्या काही केस स्टडीज असतील तुमच्या, राईट, काही ओव्हरलॅपिंग थीम्स असतील, सो दॅट यू कॅन हायलाइट है ना. ओके मॅम. ओके मॅम. एक्सक्यूज मी मॅडम. येस. हॅलो मॅडम, मला विचारायचं होतं की जसं तुम्ही सांगितलं लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये आपण पॅराफ्रेज करून टाकायचं आणि मग पुढे त्याची समरी आणि डिस्कशन करायचं. सपोजिंग जर एखादा पॅराग्राफ आपण जशाच तसा दुसऱ्या एखाद्या रिसर्च पेपर मधनं लिहिला आणि तो लिहून मग त्याच्या खाली जर आपले त्याच्या म्हणजे
आपण त्याच्यातनं काय आशय घेतला आणि मग जर पॅराफ्रेज केला तर चालतं का? कोट अनकोट मध्येच टाकला आणि रेफरन्सही प्रॉपर दिला तर इज इट अलाउड? ते अलाउड आहे, परंतु होतं काय, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का? अं, तो जो सॉफ्टवेअर चेक करतो की नाही तुमचं, हा मॅडम. तर तो मेकॅनिकली करतो. मग ओके. तेवढ्या पॅच मध्ये तेवढं पर्सेंटेज प्लॅजरिझम दाखवतो तो. मग नंतर बरं. तुम्हाला ते करावंच लागतं. राईट. म्हणून मी काय म्हटलं बरं. की तुम्ही एक चांगली सवय म्हणजे एक चांगली सवय तुम्ही लावून घ्या स्वतःला, की टेक युअर ओन नोट्स. ओके. यू रेफर द डॉक्युमेंट आणि तुम्ही स्वतःच्या नोट्स काढायची एक चांगली सवय लावा. तर तुम्हाला ते इथे प्लॅजरिझमचा पण त्रास होणार नाही. कारण पहा, तुमचं प्री पीएचडी वायवाच्या वेळेस तुम्ही प्लॅजरिझम चेकला जाता. राईट ठीक आहे, मॅम. तुम्हाला प्लॅजरिझम रिपोर्ट मिळतो एवढं सारं. मग परत बरोबर. तुम्हाला तेच काम परत नव्याने करावं लागतं ना. बरोबर यू मॅम. यूज कोट मार्क्स. पण मग त्यावेळेस काय होतं, हे सगळं मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरला सांगणार आहे. म्हणून मी ओके आज मॅम. ते स्किप केलं. बरं आय विल टेल ठीक यू आहे ना मॅम. इन डिटेल ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग प्लॅजरिझम इन टुमॉरो सेशन, राईट? ओके मॅम. ठीक आहे मॅम. थँक्यू मॅम. तुमचं हॅलो सगळं हॅलो हॅलो ओके. येस सर. हॅलो मॅडम. हा, येस मॅडम, तुम्ही याच्याबद्दल सर. बोललेलं आहे रेफरन्सेस बद्दल आणि बायबिलिओग्राफी. याच्यामध्ये नेमका म्हणजे कमीत कमी शब्दामध्ये काय डिफरन्स सांगता येईल आपल्याला? म्हणजे नेमका फरक काय? पहा, नेमका फरक आहे की मला एक बुक मिळालं, ठीक आहे, ते मी वाचलं, त्यातला एक पॅरेग्राफ मी उचलून माझ्या याच्यामध्ये टाकला ओके मॅडम. मध्ये, आणि मी त्याला रेफरन्स दिला की हा जो पॅरेग्राफ आहे हा मी या बुकमधनं या पेजवरनं घेतला. दॅट बिकम्स युअर रेफरन्स, ओके मॅडम. राईट? आता हा प्रवास करता 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 करतानी मला काही पुस्तकं जी माझ्या कामाची आहेत ती मिळालीच नाही. ओके मॅडम. म्हणजे ते मला पाहता आलं नाही, त्याला वाचता आलं नाही. पण मला असं वाटतं की माझ्यानंतर जो रिसर्चर याला टॉपिकला पुढे नेईल त्याने ती पुस्तकं शोधावीत. ओके मॅडम. है ना? तर अशा पुस्तकांची लिस्ट तुम्हाला बिब्लिओग्राफी मध्ये द्यायचे, ऍडिशनल रीडिंग. म्हणजे मी साईट केलेल्या रेफरन्सेस तर पहा, पण याच्या व्यतिरिक्त हे पण पहा. म्हणजे ऍडिशनल रीडिंग. बायबिलिओग्राफी आपण मॅडम, म्हणजेच बायबिलिओग्राफी म्हणजे आपण रेफरन्सेस हा. म्हणू शकतो ना? बायबिलिओग्राफी नाही म्हणजे नाही, आपण रेफरन्सेस वेगळे, बिब्लिओग्राफी वेगळी. बिब्लिओग्राफी म्हणजे ऍडिशनल डाटा. रेफरन्सेस म्हणजे तुम्ही जे यूज केलेले आहेत ऍक्च्युली, त्यातनं काही कॉन्सेप्ट घेतली आहे, टेक्स्ट घेतले, तुम्ही अच्छा. कॉपी केलेलं आहे, दॅट हा हा. बिकम्स द रेफरन्स फॉर युअर. ओके ओके ओके. थँक्यू मॅडम. थँक्यू सो मच मॅम. मॅम, एक क्वेश्चन विचारायचं होतं. हा, विचारा. येस मॅम, एक तुम्ही जे बोलला की अल्फाबेटिकल अँड क्रोनोलॉजिकल इन लिटरेचर रिव्ह्यू, तर थोडं कन्फ्युजन आहे की क्रोनोलॉजिकल असलं पाहिजे की अल्फाबेटिकल असलं पाहिजे जेव्हा आपण लिटरेचर रिव्ह्यू लिहितो आपल्या thesis. हे पहा, हे कसं होतं माहितीये का, हे सब्जेक्ट नुसार चेंज होतं. ठीक आहे. सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीला जर का तुम्ही थीम वाईज केलं तर ते जास्त इफेक्टिव्ह राहतं. आणि जर का तुम्हाला ट्रेंड काढायचे आहेत सब्जेक्टच्या डेव्हलपमेंटच्या किंवा हिस्टॉरिकल रिसर्च आहे, तर इन दॅट केस यू कॅन फॉलो फॉर क्रोनोलॉजिकल डेव्हलपमेंट. टाइम लाईन काढायची असेल तुम्हाला, तर ते तुमचं सब्जेक्ट काय आहे आणि तुमचं टॉपिक काय आहे, हे दोन्ही गोष्टींवरती डिपेंड करतं, वेदर टू गो क्रोनोलॉजिकली ऑर वेदर टू गो थीम वाईज. मॅडम, एक थोडंसं. हॅलो हॅलो. हा मॅडम. हा, बोला. मॅडम, एक क्वेश्चन, लहानसा क्वेश्चन आहे, लहान, की आपण आपली जर टॉपिक असतो, ठीक आहे, त्या टॉपिकला तुम्ही सांगितलं की आपण ABCD मध्ये कन्वर्ट करू शकतो थीम मध्ये, तर हे कोणत्या बेसवर, याच्याकरता क्रायटेरिया काय किंवा कुठले असे म्हणजे काही रूल्स आहे का, किंवा काही असं म्हणजे कसं कोणत्या बेसवर ते करता येईल आपल्याला, म्हणजे कोणतं लॉजिक आपल्याला ठेवावं लागेल नाही, काही नाही. डोक्यामध्ये मी तुम्हाला जेणेकरून? एक गोष्ट सांगते. सांगते. कसं होतं की आपण जेव्हा सुरुवात करतो लिटरेचर शोधण्याची, तेव्हा आपल्याला समजा पहिले 40 पेपर मिळाले आपल्याला, तर आपल्याला त्याच्यामध्ये कळतं की अरे, यातले 4 पेपर एक्सक्लुझिव्हली या थीम वरती आहेत, 4 पेपर एक्सक्लुझिव्हली या थीम वरती आहेत, 4 पेपर डेटाबेसेस वरती आहेत, 4 पेपर्स जे आहेत ते केस स्टडी सांगतायत तुम्हाला, है ना? तर ते एक्झिस्टिंग लिटरेचर आपल्याला जे मिळतं त्याच्यावर आपण त्या थीम शोधू शकतो.
येते लक्षात? हो ठीक आहे. पण आपला एखादा टॉपिक आहे, थिसिसचा आपला टॉपिक आहे, रिसर्च टॉपिक आहे, त्याला आपल्याला असं म्हणजे बायफर्केट करावं लागेल का पार्टमध्ये असं म्हणता का? नाही, तुम्हाला जे पेपर्स मिळत